Hello viewers, in this video we will continue the question law of demand. এই ভিডিওরে মধ্যে আমি ল অফ ডিমান্ড বা চাহিদা নিয়ম বিষয়ে আলোচনা করিবা। সো উই উইল এক্সপ্লেন দ ল অফ ডিমান্ড এন্ড আমি চাহিদা নিয়মকে ব্যাখ্যা করিবা। হাউ দ ল অফ ডিমান্ড ইজ অ্যাপ্লিকেবল ইন কেস অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল। সো আমি প্রথমে চাহিদা নিয়ম জଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୋ an individual you can see an individual purchase more at a lower price and purchase less at a higher price। তো ଦେଖିଥିବ ବଜାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ ଦରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ କମ୍ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଦାମ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ସେ କମ୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ in case of an individual there is a inverse relationship between price and quantity demand। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଏବଂ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ସୋ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଶୋନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଏ ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାୟାଗ୍ରାମ। ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେବୁଲ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଟେବୁଲ୍ କହିବା বা individual demand schedule ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ସୂଚୀ। First we will discuss this with the help of a table। individual demand schedule 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 individual demand schedule ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ସୂଚୀ। So what do you mean by individual demand schedule? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ସୂଚୀ କାହାକୁ କହିବା? Individual demand schedule is a list of quantities of commodity which an individual is willing to purchase at different possible prices। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦରରେ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣକୁ ଏକ ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ସୂଚୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏନ୍ ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୋଟେ ତାଲିକା। ଆମେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଉ। That means in this individual demand schedule we will show two columns. One shows the prices of the goods and another shows the related quantities of that commodity। So first we will take an example of prices of tomato then in kg in prices of tomato in rs ଆମେ ତାକୁ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ନେଇଛୁ। rs per kg ଆମେ ତାକୁ ଟଙ୍କାରେ ନେଇଛୁ। and here quantity demanded in kg ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଏରା ଆମେ ଟମାଟର ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ନେଇଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟମାଟର ବିଭିନ୍ନ ଦର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ କେଜି ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ଦର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଚାହିଦା କିଭଳି ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ସପୋଜ ହିୟର ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସପୋଜ ଟମାଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 20, 22, 25, 28 ଆଉ 30। ଏଠାରେ ଅଛି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 20 ଟଙ୍କା ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଟେବୁଲ୍ according to your convenience। ତୁମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ପିଲେ। ଯଦି ଦର ଏଠାରେ ଦେଖ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି ତାହେଲେ ଚାହିଦା କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିୟର ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ 10 kg then 8, 6, 4 and 2। That means here we have to draw this table or take this table by taking the inverse relationship between price and quantity demand। ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ସାରଣୀ କରିବା
सारणी को आम नेबा ताहले दर द्रव्यर दर एवं चाहिदा मध्य विपरीत संपर्क आम आम उल्लेख करुवा प्रदर्शित करुवा अर्थात दर एठारे देख हियर वी हैव टू शो दिस वी हैव टू ड्रॉ दिस टेबल by taking the inverse relationship between price and quantity demand. And here we have taken two variables. One is price of the good, price of tomato, and other is quantity demanded. एठारे आमे टमाटर दर एवं चाहिदा को नै अछु एवं एठारे देख पिले टमाटर दर वृद्धि पाउछि सेही समय टमाटर चाहिदा ह्रास पाउछि. Here the price of tomato is increasing, so the quantity demanded is decreasing. That means it shows the inverse relation. जदि एटा यदि तुम यदि ह्रास पाइबा जदि देखैबो ताहले एटा वृद्धि पाउथबो. सो नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस टेबल. एहाकु तापरे कोन करिवो तुम निज भाषा रे याकु तुम व्याख्या करिवो, एक्सप्लेनेशन करिवो. एक्चुअली सेटा से व्यक्ति से चाहिदा नियम अनुसार तांकर से क्रय विक्रय करूछंती कि नाही आमे व्याख्या करिबा. सो हियर इन दिस टेबल एक्सप्लेनेशन हम कि भल करिबा. देखो पिले इन दिस टेबल when the price of tomato is 20 per kg, by that time the consumer is wanted to purchase 10 kg of tomato. जेते बेले टमाटर दर 20 टंका किलो प्रति 20 टंका होई अछि सही समय से क्रेता 10 किलोग्राम टमाटर क्रय करिया पई चाहुचंती. सही भली एठा देख पिले गोटे कथा मन रख आमे चाहिदा नियम रे आमे क्रेतांक आचरण विषय रे आलोचना करथाउ. द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द बायर्स. चाहिदा नियम क्रेतांकर क्रेता विक्रेता दुई जन क्रेतांकर आचरण को अध्ययन करि थाए. से बाजार रे दर परिवर्तन हेले किभली भावरे से आचरण करि थांती ताहाको आमे एठारे व्याख्या करि थाउ. सो हाउ द कंज्यूमर हाउ द बायर्स react to the change in price is discussed in the law of demand. So when the price of tomato increased to 22, his quantity demand decreased to 8. द्रव्यर दर जेतेले 22 टंका को वृद्धि पावछि तांकर चाहिदा 8 किलोग्राम को ह्रास पावछि. सेही भली तो आपले सबु न कहले भी एते गुडी कहबो. टमाटर दर सेही भली 28 टंका को वृद्धि हेले तांकर चाहिदा 4 किलोग्राम को ह्रास पावछि. When the price is increasing to 28 per kg, by that time his quantity demand decreases to 4 kg. Finally, when the price is 30 per kg of tomato, by that time his demand decreases to 2 kg. अर्थात से पुनर्बार तांकर टमाटर दर 30 टंका को वृद्धि हेले किलो प्रति 30 टंका को वृद्धि हेले चाहिदा 2 किलोग्राम को ह्रास पाउछि. अर्थात एठारे आमे देखिया को पाइले टमाटर दर एवं चाहिदा मध्य रे विपरीत संपर्क रही अछि. Here we can see this. See, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. That means the buyers wanted to purchase more of tomato when the price of tomato is less, and he wanted to purchase less when the price of tomato is more. It shows the inverse relationship between price and quantity demand. तेणु एठारे आमे प्रमाण कले जे जणे व्यक्ति क्षेत्र रे चाहिदा नियम कार्यकारी हेउछि. से दर कम थिबा समय से अधिक क्रय करछंती एवं दर अधिक होइतबा समय से कम क्रय करछंती. एहाकु एक चित्र माध्यम रे प्रदर्शित करा जाई पारे. एंड दिस कैन बी शोन विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. आमे ताहाकु डायग्राम माध्यम रे मध्ये आमे देखै परिबा. सो वी कैन शो दिस विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. आप कौन कहवा इंडिविजुअल डिमांड कर्व. आमे ता कौन कहवा इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व व्यक्तिगत चाहिदा रेखा. इंडिविजुअल डिमांड कर्व. x axis y axis. This is the origin. Here we can take quantity demanded. Quantity demanded, or you can simply take quantity. तो एठारे चाहिदार परिमाण भी पारो बा परिमाण लिखले भी हबो. Then here we will take on the y axis price of the good. Price of good. द्रव्यर दर. Now how we will draw the demand curve. Demand curve को आमे दुई प्रकार आमे अंकन करि परिबा.
आमे से सारणी अनुसार अंकन करिपरिबा और आमे सिंपली आमे नहीं परिबा। देखो पिले मु फास्ट हमको शो करछि हाउ वी ड्रॉ द डिमांड कर्व अकॉर्डिंग टू द टेबुल को नहीं कि आमे केपरि करबा, किंतु सेटा कले टाइम टेकिंग, किंतु मु तुमको खाली देखै दउछि केमति करबा। सो प्राइस केमति निया है देखो एठारे निया हला प्राइस को फॉर एग्जांपल केते निया है 22 20 कोड केते निया है पिले 20 22 25 28 आउ 30 20 22 25 28 आउ 30 एटा निया हला। देन एठार निया हला केते निया हला 2 4 6 8 आउ 10 एटा टमाटर परिमाण निया हला। So here we have taken, I am just showing you how we will draw the demand curve. So we have taken price of the tomato on the y-axis and quantity demanded of tomato on the x-axis. So when the price of tomato is 20, the demand for goods is 10. केते होची पिले से केते किलोग्राम क्रय करछि देखो हमें एटा पाइला गुटे पॉइंट ओ पॉइंटटा पाइला ए पॉइंटटा पाइला। When the price of tomato is 20, he is purchasing 10 kg of tomato. So आमे एठारे आमे ए पॉइंटटा पाइला ए बिंदुटा आमे पाइला 20 टंका थिबा समय से 10 किलोग्राम क्रय करछि। Now when the price of tomato is increasing to 22, टमाटर दर 22 टंका को वृद्धि हेले ताकर से केते किलोग्राम से क्रय करछंती 8 किलोग्राम। तो ए पॉइंटटा पाइले जस्ट आई एम शोइंग यू माने केमती से पॉइंट गुडा आमे पाउछि। देन हाँ दर 25 टंका को वृद्धि हेले when the price increasing to 25, he is purchasing 6 kg। तातो को पॉइंटटा पाइले आमे ए पॉइंटटा पाइले ए पॉइंट। देन when price increases to 28, he is purchasing 4 kg। आमे को पॉइंटटा पाइले ए पॉइंटटा पाइले देखो हला। देन when the price of tomato is 30, आमे केमति पाइले ए पॉइंटटा पाइले। Just I am showing you how we will draw the demand curve. Demand curve को हमें केपरि बाबा। So we get all these points by joining the price with the related quantity. आमे द्रव्यर दर को से तत्संलग्न चाहिदार परिमाण को संयोग करी आमे एही बिंदु गुडी को पाइले। And when we join all these points, आमे एही समस्त बिंदु को आमे यदि जोग करिवा संयोग करिवा आमे जो रेखाटी पाइबा आमे ताहा कहिबा चाहिदा रेखा, ताहा कहिबा डिमांड कर्व चाहिदा रेखा। देखो से ऑपोजिट रिलेशन को शो करूछि कि ना देखो हियर we have shown the opposite relationship between price and quantity demand। देखो 20 टंका थिबा समय 10 किलोग्राम 20 टंका थिबा 30 टंका थिबा समय 2 किलोग्राम। So when the price is 20, he is purchasing 10 kg. When the price is 30, he is purchasing 2 kg। So एमती तने ड्रॉ कले टिके समय लागे टाइम टेकिंग। सो वी विल टेक ए सिंपल डायग्राम। आमे जानले चाहिदा रेखा पिले देखो कोन होइछि बामरु डाहाण को निम्नाभिमुखी गति करू अछि। द डिमांड कर्व इज मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्वटा डाउनवर्ड मूव करूछि देखो डाउनवर्ड मूव करूछि। सो सेति पा हम कोन करिवा आमे याकू देखै परिवा। जस्ट आमे कोन करिवा आमे सिंपल डिमांड कर्व केमती ड्रॉ करा दे मु देखै दउछि। आमे डिमांड कर्व रे मध्य दर एवं चाहिदा मध्य रे थिबा विपरीत संपर्क को आमे व्याख्या बा विश्लेषण करि थाउ आमे प्रदर्शित करि थाउ। सो टेक ए सिंपल डायग्राम। टेक ए सिंपल डायग्राम। This is x-axis, this is y-axis. Here we have taken price of the good, and here quantity demanded, चाहिदार परिमाण। Now just draw the demand curve. This is the demand curve. You can take a straight line or a curve. तुम एठारे गोटे स्ट्रेट लाइन सड़क रेखा भी नहीं पारो, सरल रेखा भी नहीं पारो, किंबा कर्व टिके कर्व करिकी कले भी बा वक्र अंक रेखा अंकन कले भी टिके चलिबो किसी माने से भूल हुए ना।
किंतु चाहिदा रेखाटी दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट एटा बाम एटा डाहाण चाहिदा रेखाटी सर्वदा बामरु डाहाण को निम्नाभिमुखी हेउथबो बामरु डाहाण को निम्नाभिमुखी हेउथबो चाहिदा रेखा एमती केबे हुए ना एटा कोन बामरु डाहाण को ऊर्ध्वाभिमुखी किंतु एटा बामरु डाहाण को निम्नाभिमुखी एमती हुए एटा आमे जोगाण रेखा रे पढिबा सेटा सो दिस इज डिमांड कर्व एटा कोन पिले डिमांड कर्व चाहिदा रेखा डिमांड कर्व दिस इज डिमांड कर्व एंड we will take a name dd is the demand curve देखो केमती मु देखाउची तुम देखो मु सिंपल नहीं को देखाउची सपोज दिस इज p1 and p this is q and q1 मो दर को p1 नहीं होली आ परिमाण को q1 नहीं होली हैला सो देखो एटा एमती भी नेले होबो सपोज एटा 30 टंका आ एटा हैला केते 20 टंका आमे जो सारणी रे नैछि सबुठु सर्वाधिक दर सर्वोच्च दर एटा सर्वनिम्न दर 20 टंका आ सर्वाधिक दर 30 टंका आ एटा 2 किलोग्राम निया हिछि आ एटा 10 किलोग्राम निया हिछि एमती भी होला सो तो आमे सेटा न नेकी कौन करिबा आमे p1 और p बोली कि नेले p1 टा हला अधिक दर p टा हला कम दर तेनो आमे से सारणी सहित हमर किछि संपर्क नाही है खाली आमे आको एक्सप्लेनेशन करिबा नाउ याको एक्सप्लेनेशन केमति करिया पिले नाउ हाउ विल एक्सप्लेन दिस तो मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन करिवो इन द डायग्राम we have taken price on the y axis and quantity demand on the x axis एठार ए सारणी रे आमे x अक्ष रे आमे x अक्ष रे आमे चाहिदार परिमाण एवं y अक्ष रे आमे द्रव्यर दर को नै अछु एही सारणी रे dd हेउची एही चित्र रे dd हेउची चाहिदा रेखा इन दिस डायग्राम dd is the demand curve and the demand curve slope माने गति करता है नति तार slope माने गति केमति था slope the demand curve slopes downward from left to right this is most important या short question में मध्य आसी the demand curve slopes downward from left to right चाहिदा रेखा बामरु डाहाण को निम्नाभिमुखी गति करि थाए एवं एहा कोन सूचना दै थाए निम्नाभिमुखी गति करि थाए माने कोन सूचना दै थाए द्रव्यर दर एवं चाहिदा मध्य थिबा विपरीत संपर्क को सूचना सूचित करि थाए this downward sloping demand curve shows negative relationship between inverse relationship between price and quantity demand एमान को मध्य विपरीत संपर्क को से सूचित करूछि कि भली देखो पिले when the price is p1 दर जितले केते अछि p1 quantity demanded is oq quantity demand केते अछि oq that means at a higher price the quantity demand is less द्रव्यर दर जिते p1 अछि op1 सेही समय चाहिदा केते अछि oq अर्थात दर अधिक थिबा समय से कम किनिबा पय चाहूछि एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टू p दर इतले op1 ru op को ह्रास पावछि व्हेन प्राइस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम op1 टू op द क्वांटिटी डिमांड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम oq टू oq1 दर जेते बेले op को ह्रास पावछि सेही समय चाहिदा कोन होछि oq ru oq1 को वृद्धि पावछि अर्थात आमे कोन देखले एठी जे कम दर थिबा समय से अधिक क्रय करूछि एवं दर अधिक होइतिले से कम क्रय करूछि जहां हमें सारणी रे मध्ये देखले एठी भी सेटा हमें देखि पाछि सो हियर वी कैन सी दिस व्हेन प्राइस इज लेस क्वांटिटी डिमांड इज मोर एंड व्हेन प्राइस इज मोर क्वांटिटी डिमांड इज लेस सो इन दिस डायग्राम आल्सो we can see this there is a inverse relationship between price and quantity demand so the law of demand is applicable in case of an individual तार्थ गोटे व्यक्ति क्षेत्र रे चाहिदा नियम कार्यकारी हेउ